سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے اگر آپ دعوت اسلامی کے ہر ماننے والوں کو کوئی ایک نصیحت ارشاد تو میں فرمائیں۔ نے 72 نصیحتیں کی ہیں نا، خالی ایک سے کام نہیں چلے گا۔ نماز کے ہر رکن میں ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جبکہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جیسے اللہ اور رسول کا حکم ہے ویسے اپنے کو کرنا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھر کے بچے ایک وقت کا کھانا تر و تازہ تو کھا لیتے ہیں لیکن دوسرے دن کا کھانا نہیں کھاتے، اور عموماً گھروں میں بہت کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ آپ سے دوستی کر لینی چاہیے۔ میرا بھی یہی ذہن ہے کہ یار اسراف نہیں ہونا چاہیے، ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہوتا ہو، یہ حرام ہے۔ اب اگر نہیں کھا رہے تو کسی کو کھلا دیا جائے، کسی کو دے دیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ بھی لاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم بنگلہ دیش چٹاگنگ سے آئے ہیں، ہمارا نام عارف اتاری۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا اسلامی بہن محرم کی بغیر نامحرم کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا کیسا ہے؟ یہ محرم بولتے ہیں، محرم، میم ہا زبر مح، لیکن آواز وہ زیر کی نکلے گی، محرم، جس سے اہل سنت، اصل تلفظ ہے اہل سنت، لیکن وہ اردو میں یہ گنجائش ہے کہ اہل سنت بولے۔ تو حج و عمرہ کے لیے محرم ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اصل جو محرم کا مسئلہ ہے نا، وہ سفر کے لیے، کہ اگر شرعی سفر ہے جو کم و بیش 92 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس فاصلے کا سفر اگر کوئی کرے گی عورت تو اس کو محرم یا شوہر یہ ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے۔ کیا محرم تو ایک دن کا بچہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے قابل اطمینان محرم ہو، تو اس کے ساتھ عورت کو سفر کرنا ہوگا۔ اب مکہ شریف میں رہتی ہے جو، تو وہ اب عمرے کے لیے محرم کی محتاج نہیں ہے، اکیلی بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ سفر، اس کا تعلق سفر سے، حج و عمرے سے نہیں ہے۔ مشہور یہی ہے کہ یہ حج و عمرے کے لیے محرم چاہیے، فاصلے کا مسئلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد بلال حسین اتاری ہے، میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال ہے کہ نماز کے ہر رکن میں ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جبکہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب عطا فرما دیے۔ اور سلام بھی کیوں پھیرتے ہیں، اللہ اکبر یہاں بھی کیوں نہیں بولتے، اس کا بھی جواب چاہیے۔ جی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کیوں کہتے ہیں، جی جی اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، اس کا بھی جواب چاہیے۔ سب کا جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ اور رسول کا حکم ہے ویسے اپنے کو کرنا ہے۔ حکمت سب سے بڑی یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیا، جیسا ہمیں حکم دیا، ہم نے وہ بیان لانا ہے۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আত্তারি, বাংলাদেশ থেকে। আমার জিম্মাদারি হলো কর্ণফুলী থানা নিগ্রান। প্রিয় মুর্শিদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, আমাকে এক ইসলামী ভাই বলেছিল মদিনা শরীফে, আলহামদুলিল্লাহ আমি উমরা করেছি, উমরা করার পরে সরাসরি এখানে এসেছি। আমার প্রশ্নটা হলো, এক ইসলামী ভাই আমাকে বলেছিল যে
মদিনা শরীফে যে রওজাতুল জান্নাহ আছে, ওই রওজাতুল জান্নাতে একবার যে ঢুকে, অর্থাৎ জান্নাতে একবার যদি আল্লাহ পাক কাউকে ঢুকায়, তাকে আর জান্নাত থেকে বের করে জাহান্নামে ঢুকাবে না। তো এই কথাটা আসলে কতটুকু শরীয়ত সম্মত, যদি আমির আহলে সুন্নাত দয়া করতেন আর কি, এই প্রশ্নটার उत्तर देते हैं कि हुजूर ये इस्लामी भाई थाना का निगरान है, दिलवार अत्तारी उनका नाम। तो वो उम्रा करके यहाँ हाजिर हुए हैं। तो बहुत सारे इस्लामी भाई उम्रा करके हाजिर हुए। तो सुना है जो कोई इस्लामी भाई कहते हैं तो ये रियाजुल जन्ना जो है वहाँ पर कोई एक मर्तबा दाखिल हो जाते, एंटर्ड हो जाते, तो वहाँ से एक मर्तबा जन्नत में दाखिल हो जाते तो और जहन्नम में नहीं जाएगा। तो ये सही है, ये शरिया क्या कहते हैं, ये पोस्ट है इस्लाम। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर तो है, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नवीद नजात व ज़फ़र की है। यानी जो जन्नत में एक बार आ गया तो जहन्नम में नहीं जाएगा, नहीं जाता। जन्नत में आ जाता है, वो जहन्नम में फिर नहीं जाता। अल्लाह का शुक्र है कि नवीद मन खुशखबरी है नजात और कामयाबी की, नजात और ज़फ़र, नजात और कामयाबी की खुशखबरी है। ये एक शेर है आला हज़रत का, ये शेर याद है मुझे, बाकी इसकी फजीलत बेशक होगी, जब भी तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर बयान फरमाया है। ये तो बहुत सारे मतलब इस तरह के फ़ज़ाइल होते हैं कि मतलब ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती। असल तो वो इन्नमल अमालु बिल ख़वातिम, अमाल का दर व मदार ख़ात्मे पर है। तो इसकी भी है कि इंशाअल्लाह वो बिल आखिर जन्नत में जाएगा, या ये हो सकता है कि उसके ईमान पर इस्तिकामत उसको मिल जाएगी वगैरह। अब ये नहीं कि मतलब अब रियाजुल जन्ना, रौज़तुल जन्ना में गया और अब ये कि इसको अब छुट्टी हो गई, हम ना नमाज पढ़े ना और कुछ करे और गुनाह करता रहे, और अब तो ये जन्नत में, बस जन्नत में चला गया था, अब ये जहन्नम में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी तो ज़ाहिर नहीं होगा ना। या अल्लाह पाक ऐसे अमल की तौफीक देगा कि वो जन्नत में जाए। अब अल्लाह बेहतर जाने, हदीस पाक मुझे पता नहीं है इसकी। यहाँ ये हुस्न ज़न तो हो सकता है ना, जैसे तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तो यहाँ वही कि जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, तो मेरा हुस्न ज़न है कि मैं यहाँ आ गया तो इंशाअल्लाहुल करीम मेरा ख़ात्मा ईमान पर होगा इंशाअल्लाह। आज तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तू करीम, अब कोई फिरता है अतिया तेरा। देखे या रसूलल्लाह, आपने हमको इस्लाम दिया, अपनी जमाअत में लिया, अपनी उम्मत में लिया, अपने गुरोह में लिया, और आप करीम हैं। और करीम क्या देकर वापस भी लेता है। जब आपने हमको ईमान दिया, इस्लाम दिया, तो क्या लेकर आप वापस लेंगे, देकर लेंगे? अब तो करीम है। तो ये सब क्या मोहब्बत की बातें हैं, इश्क की बातें हैं, और वाकई ऐसा ही है। सरकार जो देंगे तो वो लेंगे थोड़ी। हमारी मतलब ये कि हुस्न ज़न, हमने मतलब आखिरी सांस तक गिड़गिड़ाते रहना है कि हमारा ईमान सलामत रहे, बेफिक्र नहीं होना, गफलत नहीं करनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयद मुतीउन नबी अत्तारी जामिअतुल मदीना यूके से। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि आपके हर मुरीद की ख्वाहिश और नीयत है कि आपकी तरबियत पर अमल पहरा हो। अगर आप अपने हर मुरीद को कोई एक नसीहत इरशाद फरमाएं तो वो कौन सी ऐसी नसीहत होगी? दावत इस्लामी पीर खाना नहीं है। दावत इस्लामी के लिए आप लोग ये बोलते हैं पीर पीर में, मुझे थोड़ा अभी क्या बोलूँ, मतलब इसमें आप थोड़ा गौर फरमाएं कि आप यानी कि अब हमारे पास नक्शबंदी भी हैं, चिश्ती भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, हनफी भी हैं, शाफी भी हैं, मालिकी भी हैं, आप देख ही रहे। तो अगर हम ये आप ये करते हैं ना पीर मुर्शिद, पीर मुर्शिद, पीर खाना, पीर मुर्शिद, तो ये दूसरों का दिल नहीं थोड़ा होगा कि यार हमारा कौन। तो इससे नहीं शैतान बेका कर किसी को हमसे जुदा कर दे, यार ये तो आस्थाना है। ये मैं अपने यहाँ भी चंद बार समझाया हुआ है
کہ یار پیر پیر کرنے کے بجائے اب دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی کا دامن بہت بڑا ہے. یہ پیری مریدی ایک سمجھو کہ ایک سائیڈ ہے, ضمن ہے کہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا طریقہ اور ہمارے بزرگوں نے کیا ہے, لیکن ہمارا دعوت اسلامی یہ کام ہے سب میں ہے. بہت سارے یا کچھ نہ کچھ چشتی تو ہے نا ہمارے ساتھ, نقش بندی بھی ہیں, کوئی ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے نقش بندی چشتی. تو اس طرح مہربانی کریے, بنگلہ دیش کو بھی میں نوٹ کیا تو یہ مرشدی کر رہے تھے. تو اکیلے میں جو بھی آپ کو کرنا ہے, لیکن اس وقت آپ سب میں ہیں. تو وہ بولتے ہیں نا, کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. تو یہ سب کو جو سمجھ میں آئے نا, وہ لینگویج ہونا یہ آپ کی دعوت اسلامی کے لیے مفید ہے. اگر آپ دعوت اسلامی کے ہر ماننے والوں کو کوئی ایک نصیحت ارشاد تو میں فرمائیں. نے 72 نصیحتیں کی ہیں نا, 72. خالی ایک سے کام نہیں چلے گا. آپ مطیع النبی ہیں تو مطیع اللہ بھی بن جائیں, مطیع النبی بھی ہوں. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا, یہ تو مطلب ایک ہے نا کہ مطیع النبی, نبی کی اطاعت کرنے والا ہوں. سبحان اللہ, اللہ آپ کو اس میں باب مسمہ بنائے, یعنی جیسا نام ہے ویسا بنائے کہ واقعی اطاعت نصیب ہو جائے. تو اللہ اور رسول کی اطیع اللہ و اطیع الرسول, پھر سب آ گیا. وہ قرآن نے ہم کو بتا دیا, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وہ پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو تم میں امیر ہیں, جو حکیم ہیں, ان کی بھی اطاعت کی جائے. بہرحال وہ بھی اللہ اور رسول کے ماتحت ہی اطاعت ہوگی. اگر وہ خود باغی ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد یاسر اتاری اسکاٹ لینڈ. ماشاء اللہ. یا سیدی, بعض اوقات ہمارے باہر کے اسلامی بھائی اور گھر کے بچے ایک وقت کا کھانا تر و تازہ تو کھا لیتے ہیں, لیکن دوسرے دن کا کھانا نہیں کھاتے, اور عموماً گھروں میں بہت کھانا ضائع کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ گھروں میں جو ہے وہ کونسل کی طرف سے جو ہے وہ ویسٹ بینک بھی رکھے جاتے ہیں. اور اسی طرح محافل میں, میلاد میں, سینٹروں میں, اور پھر وہ کوئی کھانا لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی کہاں دیا جائے اس کو. تو اس طرح کی آزمائش اتنی زیادہ ہے, اس حوالے سے کچھ آپ رہنمائی ارشاد فرمائیں. بعض اوقات تو کئی اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے قافلے میں بھی کہ ایک دن کا تازہ کھانا کھانا ہے, دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ اب نیا تازہ کھانا ہوگا تو ہی کھائیں گے, پرانا ایک دن کبھی نہیں کھاتے. تو اس حوالے سے یا سیدی کچھ ارشاد فرمائیے کہ کہیں ہم اس کھانے کو ضائع کر کے اس کھانے کی کہیں بے حرمتی اور اللہ کی نعمت ضائع جو کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ اسکاٹ لینڈ سے یا سیدی. ماشاء اللہ. آپ سے دوستی کر لینی چاہیے. میرا بھی یہی ذہن ہے کہ یار اسراف نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ ہوتا ہے سمجھے اسراف, بدقسمتی سے کھانوں میں, اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. چاہے مذہبی تقریب ہو, چاہے کوئی دنیاوی دعوت, ہر جگہ افسوس کے مطلب بہت کچھ ضائع کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک واقعی آپ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ وہ دوسرے دن نہیں کھائیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے صبح کا شام کو نہیں کھاتے ہوں گے, دوپہر کا بچہ وہ شام کو نہیں کھائیں گے, نیا چاہیے. اب جو پیسے والے ہیں تو وہ تو کر لیتے ہوں گے, اور جو بچ گیا وہ پھینکنے کا رواج ہے. بدقسمتی سے ایک تعداد ہے جو اسی بھی ملے گی اپنے کو, جو کھانا بچ گیا اس کو ڈسٹ بن میں. تو یہ تو اور بھی تو جو کھانے کے قابل ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ پھینکیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ وہ اسراف ہے, اسراف وہ ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہوتا ہو, یہ حرام ہے. تو اب اگر نہیں کھا رہے تو کسی کو کھلا دیا جائے, کسی کو دے دیا جائے. لیکن یہ کہ اگر کھانے کے قابل ہے پھر بھی اس کو ویسے ضائع کر دیا, یا اگر کھانے کے قابل ہے خود نہیں کھاتے, وہ گائے کھا لیتی ہے اس کو کھلا دیا تب بھی صحیح ہے, بکری کھا لیتی ہے اس کو کھلا دیا, مرغی کھا لیتی ہے, پرندے کھا لیتے ہیں تو صحیح ہے. ورنہ یہ کہ وہ ایسے ہی پھینک دیں گے تو گناہ کی صورت سامنے. اچھا, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بنایا اتنا جائے کہ اب وہ حدیث سے پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنا کھانا ناپ لیا کرو,
नाप लिया कि नाप बिडिंग मेजरमेंट, दोबारा लेके अपना खाना नाप लिया करो, तुमको इसमें बरकत दी जाएगी। शरहा मिरआतुल मनाजी में लिखा है, जब बाल बच्चों के लिए खाना पकाने लगो तो वजन करके पकाओ ताकि कम ना पड़े और ना खाना फालतू बचे। ये हुक्म इस्तेहबा भी है, ने नाप लिया करो, नाप लेने का हुक्म जो है ये मुस्तहब है, नाप लेना। तो ये तो खैर अंदाज ढूंढ लेते होंगे कि कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये नहीं सोचेगा अगर बढ़ गया तो क्या करेंगे। तो बढ़ गया तो ठीक है, भले बढ़ गया, लेकिन इसको बाद में इस्तेमाल किया जाए। एक एक दाना जो है ना, ये अगर एक दाना भी हम ज़ाया करेंगे तो इसका एक दाना क्या आधा दाना ये भी ज़ाया करने की इजाज़त नहीं है। 1/4 दाना भी ज़ाया करने की इजाज़त तो नहीं मिलेगी, सब खाना। अब जैसे कि रोटी तोड़ते हैं, तो ये मैं आज से नहीं बरसों से मशवरा देता हूँ कि थाल होता है, रोटी तोड़ते हैं या प्लेट है, तो रोटी इसके ऊपर ऐसी एहतियात से तोड़ें, जो रोटियाँ जो जिनके ज़र्रात झड़ते हैं ऐसी रोटियाँ, तो ये उसमें प्लेट में ज़र्रात गिरे। लेकिन मैंने नोट किया है कि मैं समझाता हूँ, अब ज़िंदगी भर मतलब ज़ाया किया है, अब थोड़ी देर के लिए मेरे साथ पहले, अब मैं साथ बैठता था, इन लोगों के साथ बिल्कुल ज़मीन पर बैठता था, अब खैर थोड़ा टेबल कुर्सी और दूर मजबूरी ने बिठाया है। तो ये मैंने नोट किया कि डायरेक्ट भी समझाओ ना, इनको बार बार समझाओ, लेकिन बस भूल जाते और रोटी फिर वो किनारे पर थाल के रमज़ानों में इतिकाफ में तजर्बे किए हैं, वो गिर रहा है, तो कुछ अंदर गिर रहा है कुछ बाहर गिर रहा है, मतलब शोर नहीं। तब मेरे खौफ से और मेरे समझाने से, और अभी समझाया है, तब भी आधा उदा काम हो रहा, तो बाद में तो खुदा जाने क्या होता होगा, अकेले में या घर में या जहाँ को बोलने वाला नहीं, बोलता कोई भी नहीं है, जनरली कोई नहीं बोलता, लेकिन कम कम कोई बोलता है, किसी किसी का जहन होता है। शायद मैं कहूँ लाखों में, तो शायद दुरुस्त होगा ये कि लाखों में जहन होता है इस तरह का, वरना जनरली बहुत ज़ाया करने का मिजाज है। तो इस तरह रोटी, फिर शोरबा घरों में बच जाता है, शोरबा कल्टी फेंक दिएंगे। इस तरह मतलब ये कि और भी बहुत सारा खाना थोड़ा बच गया तो वो फेंक देंगे, या थाल साफ नहीं करेंगे वो फेंका जाएगा। पतीला चावल का भी है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर चिपका हुआ होता है, वो फेंका जाएगा। देग होती है, देग कभी किसी को साफ करते नहीं देखा, देग में कुछ बचा रहता है, वो धुलने में चला जाता है। ये हर जगह होता है जनरली, लेकिन ये कब ज़ाहिर है कि बचना तो है, कोशिश तो करनी है, हमारा काम बस समझाना है, समझाते हैं और क्या कर सकते हैं। आवेगा हवाई बिगड़ा हुआ है, ऐसा है कि मतलब तकरीबन बिगाड़ है, घर घर में बिगाड़ है। पानी बहाना ये अपनी जगह पर इतना ज़्यादा बहाते हैं कि खुदा की पनाह। एक चम्मच धोना है ना, तो दर्र करके नल खुलेगा, 2 बाल्टियों इतना पानी बह जाएगा, फिर चम्मच धुलेगा। ये बहुत तजर्बा होगा। हाथ धोएंगे तो दर्र करके नल खुला हुआ है, पानी जा रहा है, साबुन उठाया, थोड़ा मला, पानी जा रहा है, फिर यूं किया। वुजू करते हुए नल खुला रख कर तो मजा करते हैं, नल पानी बह रहा होता है, तो यानी किस किस बात का रोना रोया जाए। इसराफ तो मतलब यानी कि नस नस में उतर गया है। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए, तौबा की तौफीक दे। कि हम लोग समझते हैं कि यानी फुला बड़ा गुनाह, गाली देना तो ये गुनाह है, वाकई गुनाह है, झूठ बोलना ये गुनाह, ये थोड़ा समझ में आती है बात चीज़ें, लेकिन ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं कि ये भी गुनाह है। जैसे इसराफ, ऐसा इसराफ जिसमें माल ज़ाया करना पाया जाए, खाना फेंकने में तो माल ज़ाया करना है ना, तो ये इसराफ ये समझ में नहीं आता, इसकी तरफ तवज्जो नहीं। और बहुत सारी चीज़ें 2-3 मिसालें मैं आपको दी, ये समझ में नहीं आता। ये पानी नल खोल के मस्से के लिए और फिर ये कर रहे, ये इसराफ है, ये भी गुनाह है, पानी ज़ाया हो रहा है, तो ये नहीं समझ में आता, ये तरफ तवज्जो नहीं है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। समझाते रहें, सवाब कमाते रहें। इंशाअल्लाह। और ये भी नहीं है कि नहीं समझते, बहुत सारे लोग समझते हैं। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से बहुत सारों का ये जहन बना हुआ है, इसराफ नहीं होना चाहिए, बत्तियाँ बिला ज़रूरत नहीं जलें। 1 बत्ती की ज़रूरत है तो 1 बत्ती जलाएं, 100 बत्ती की ज़रूरत है 100 लाइट, 100 बल्ब रोशन करने की
ऑन करने की ज़रूरत है तो 100 बल्ब आप ऑन करें। अब जब एक से काम चलता है तो 2 भी क्यों? मगर आपके यहाँ तो मतलब क्या, हमारे यहाँ भी हर जगह यही होता है। अब तो एक स्विच के साथ कई कई बल्ब होते हैं, आदमी क्या करे? एक स्विच के साथ बल्ब और पंखा दोनों होते हैं, तब आदमी क्या करे यार, कहाँ जाए मदीने? यूके का तो मुझे हाजी अब्दुल हबीब ने बहुत पहले बताया था कि तुम बेहोश हो जाओ, उसको मेरा मिजाज पता है ना, कि एक बटन आते ही ऑन करते हैं, सारी मस्जिद की लाइट ऑन। अल्लाह में तरिया ने, मैं तो गया नहीं हूँ, तो वाकई में बेहोश हो जाऊँ, मुबालगा है, मुझसे बर्दाश्त न हो गई। ये क्या यार पागल लोग बसते हैं, या ये पागल हैं या क्या मैं हूँ? मैं तो शरीयत की बात देख रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग। कौम का चंदा इस तरह बेदर्दी से, इतना बिल, इतनी बिजली जाया करते हैं। सबको अल्लाह हिदायत दे, कोशिश करते हैं। आमीन आमीन। हो सकता है अपने फैजान मदीना में भी ऐसा होता हो, वहाँ पर जहाँ ये रवाज है एक बटन से सब ऑन होता हो, लेकिन सब जगह नहीं होता होगा ऐसा। कहीं होता होगा, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं एक फ्लैट का होता होगा, कहीं एक पर्सन का होता होगा, कहीं 4 बत्तियाँ, 4 बल्ब रोशन होते होंगे इससे, क्योंकि बहुत सारे भी स्विच रखने पड़ते हैं और रोशनी भी बहुत करते हैं। ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो लाइटिंग जो खूबसूरती की होती है वो अलग होती है, रोशनी देने की अलग होती है। ये खूबसूरती की लाइटिंग नहीं है, ये रोशनी देने की लाइटिंग है। इस वक्त हमारे यहाँ मिलाद हाल में, तो अब इस वक्त चूँकि ज़रूरत है कि बहुत सारे इस्लामी भाई जमा हैं, कैमरे भी हैं, कैमरे को भी ज़रूरत पड़ती है लाइटिंग की। लेकिन ये कि अब जैसे आपके इज्तिमा का आप बनाते हैं, तो अब ये कि वहाँ जो मस्जिद की लाइटिंग जो है ना, ये ज़िम्नन मुझे याद आ गया, जब मस्जिद की लाइटिंग ये लोगों की इबादत करने के लिए, नमाज़ों के लिए, हमारे कैमरे के लिए वो इसका उर्फ नहीं है। अगर हम अपना कैमरे में लेने के लिए हम यानी ये लाइटिंग इस्तेमाल करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। जितनी लाइटिंग का उर्फ है मस्जिद का, वो उतनी में ही करना है जो करना है। अच्छा, फिर ये कि हर जगह इज्तिमा में इस तरह भीड़ भाड़ नहीं होती, कहीं 20 होते होंगे, कहीं 30 होते होंगे। तो हमारे यहाँ जो मदनी खबरें में मैं देखता हूँ उसमें तो ये एहतमाम करते होंगे, बाहर जो खड़े उनको बुला लेते होंगे, जो कोने में होगा उसको आगे कर देते होंगे कि भाई वो अब तो आ जाओ, अब तो कैमरा चलेगा। अल्लाह के लिए तो नहीं आए, कैमरे के लिए आ जाओ कि मदनी खबरें में चलेगा, तो भाग भाग के आ जाते होंगे। अब ये बनती होगी, अब माइक फुल चल रहा है, फुल लाइटिंग है। यार आखिरत में हिसाब कैसे देंगे हम? ये मैं आज से ही वर्षों से अर्ज करता हूँ कि अगर बिला तकल्लुफ आवाज़ बगैर माइक के चली जाती है, फिर ये माइक यूज़ करना कैसा? अब आदमी 15 बैठे में यार, आपने मतलब कि इको साउंड लगाया हुआ है, माइक लगाया हुआ है, क्या है ये? ज़रूरत क्या है? ये हो रहा है, हमने मतलब ये नहीं कि कई बार मना किया है, लेकिन इस तरह का होता है। मदनी खबरें में मैं देखता हूँ तो ये होता है। अब हो सकता है मदनी खबरें में ऑन करते हों, फिर ऑफ कर देते हैं, फिर ये हाथ हाथ तो आगे पीछे हो जाते होंगे। जब ये ऑन पॉकेट, वो इन गेट जो बैठे थे वो हो सकता है आगे पीछे हो जाते हो। तो सब यार मतलब कैमरे के लिए कर रहे हैं, क्या अल्लाह के लिए भी कुछ करना है? अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। बहुत खराबियाँ हैं और आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह इखलास अता फरमाए। ये दिखावे और रिया के लिए, उब्बे जहाँ के लिए बहुत सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं। आखिरत में क्या होगा? अगर कह दिया गया कि जिसके लिए अमल किया था उससे ले लो मतलब अपना बदला, मेरे लिए तो किया नहीं था अमल, तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह पाक हमें बेहिसाब बख्श दे। तो ये कि जितनी ज़रूरत हो, अगर ज़्यादा लोग हैं तो माइक इस्तेमाल किया जाए, और अगर कम है माइक के बगैर बिला तकल्लुफ आवाज़ जा रही है, सब सुन रहे हैं जितने हैं उनको, तो फिर माइक ऑन ना किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अगर दाढ़ी के ताल्लुक से भी कुछ मदनी पुल अता फरमाएं कि दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। दाढ़ी जो रखते भी हैं बदकिस्मती से तरह तरह की तराश खराश करके उसको
इस्लामी दाढ़ी रहने नहीं देते, क्योंकि नोक की तरह कर देते हैं, एक मुट्ठी से घटा लेते हैं, क्या क्या डिजाइनिंग करते हैं इसमें, तो ये नहीं होनी चाहिए। सारे बाल पूरे पूरे हों, एक मुट्ठी दाढ़ी ये नीचे से पकड़ लें, अब जो बाल निकले वो भले आप काटें। इसी तरह यहाँ से भी एक मुट्ठी के बाद जो निकले उनको भले आप काटें। हमारा अपना अमल हो जाएगा तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे अमल से अल्लाह ने चाहा तो लोगों में अमल पैदा होना शुरू हो जाएगा। बच्चियों के लिबास भी खुदा की पनाह, तो इसलिए मेहरबानी करके बच्चा हो, बच्ची हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको चाहिए कि अपने लिबास को ऐसा रखें कि जो सुन्नत से दूर ना करने वाला हो। सरसब्ज